Hello students, today we are going to discuss a new chapter. Let's start our today's video. Today we are going to learn about the risk and returns related to a business finance. In this video, I will be talking only to the topic of risk. In the next video, we will be talking to the point of returns. Let's start our today's video. Starting with the introduction of financial risk, we can say that it is an inherent part of the investment and is applicable to the business, government, individual and even financial markets. That means कि financial risk हर एक जगह applicable होता है and it is just to the parallel of investment. जहाँ पे investment होगा वहाँ पे risk factor भी होगा. ये applicable होता है हर एक person के लिए, whether it's a business, whether it's a government, whether it's an individual and even the financial markets. It basically represents the chance that the parties involved or that we call as stakeholders will lose money. रिस्क का मतलब क्या होता है कि देयर आर चांसेस कि हाँ जो पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं जिसे हम स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं उनका कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द गवर्नमेंट इट कुड मीन्स अ फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है कि उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज अप्लाई की गई हैं वो फेल हो जाए. And default on bonds or other debts. For a company, it could mean unable to pay a debt, losing value on investment, and similarly, individual face such a risk if their financial decisions jeopardize their ability to pay the debt. Financial market forces such risk due to macroeconomic forces. So there are various forces. That is why we have to bear that risk. Such risks are essentially the result of market movements. Therefore, all entities across the world put extensive effort in managing their financial risk. The most important thing is that कि रिस्क को हम अपना इन्वेस्टमेंट से अलग तो नहीं कर सकते, बट इफ अ प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द रिस्क हैज बीन मेड वी कुड डेफिनेटली मिनिमाइज और एलिमिनेट इट्स इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस. तो दिस इज द व्हाई ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस are involved in the process of assessing the risk as accurately as possible. In this article, we will focus mainly on the financial risk faced by the corporations. In order to survive and also thrive, corporations need to identify the risk first and then look for a solution to the same. There are many professional certifications such as FRM, which is called as फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. ये आपके कोर्सेज होते हैं. इससे हमें बेनिफिट क्या होता है ऐसे कोर्स करते हैं? वी वर्क एज एन मैनेजर्स विद द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. दैट मीन्स कि मुझे ऐसी जगह, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे कंपनी में जॉब मिल जाती है जहाँ पे हमारा काम क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क को एसेस करके टॉप लेवल अथॉरिटीज को क्या करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना. मूविंग टू द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. वैसे तो हमारे जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं ये दो टाइप में कैटेगराइज होते हैं. द फर्स्ट इज द सिस्टमैटिक एंड द अदर इज नॉन सिस्टमैटिक. द सिस्टमैटिक रिस्क रेफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द होल इकोनॉमी सच एज रिसेशन. दैट मीन्स सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब वो रिस्क होता है जो बड़े स्केल पे क्या होता है, अप्लाई होता है. ऑब्वियसली नॉन सिस्टमैटिक मीन्स क्या होगा, जिसका स्केल क्या होता है, लिमिटेड होता है, कुछ सेपरेट पार्ट्स में हो सकता है, सेपरेट सेक्शंस पे पड़ सकता है, इसका इम्पैक्ट होल इकोनॉमी पे एक साथ नहीं पड़ता है. तो वी कैन से एज नॉन सिस्टमैटिक रिस्क रेफर्स टू और affects specific sectors or companies and one can minimize it by careful planning. Apart from these two broad categories, we can further classify financial risk into the following types. फाइनेंशियल रिस्क को वैसे तो हम सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक रिस्क में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा और फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो दीज रिस्क कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग हेड्स. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द मार्केट रिस्क. Fluctuation in the price of financial instrument causes market risk. We can mainly divide market risk into directional and non-directional. जो हमारा मार्केट में जो फ्लक्चुएशन की वजह से जो रिस्क हमें बियर करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट रिस्क. ये जो मार्केट रिस्क होता है ये दो तरीके का हो सकता है. एक होता है डायरेक्शनल रिस्क होता है और एक होता है नॉन डायरेक्शनल रिस्क. डायरेक्शनल रिस्क इज द आउटकम ऑफ फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ स्टॉक, इंटरेस्ट एंड सो ऑन. नॉन डायरेक्शनल रिस्क कैन बी वोलेटिलिटी रिस्क. मतलब नॉन डायरेक्शनल रिस्क का मतलब होता है जिसका डायरेक्शन आपको नहीं पता हो, आप ये नहीं बता सकते हो कि आपको किस तरफ हो सकता है, किस तरफ लॉस हो सकता है, कि आपको ज्यादा लॉस होगा या कम लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस, कुछ भी आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हो. दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द रिस्क इज नॉट डिटरमाइन. तो वो हमारा क्या हो जाता है, नॉन डायरेक्शनल रिस्क हो जाता है.
जो मार्केट रिस्क है उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके हम बात करें तो फर्स्ट इज द एब्सोल्यूट रिस्क होता है, रिलेटिव रिस्क होता है, बेसिस रिस्क होता है, एंड द अदर इज वोलेटिलिटी रिस्क। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट रिस्क। अब हम आते हैं क्रेडिट रिस्क पे। द रिस्क दैट वन ऑफ द पार्टीज में फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द अदर इज कॉल्ड एज रिस्क क्रेडिट रिस्क। इसका मतलब क्या होता है, जब आप अपनी मार्केट में जो क्रेडिबिलिटी को नहीं पे ऑफ कर सकते हो या अपनी क्रेडिबिलिटी पे अप टू द मार्क नहीं रह पाते हो, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क। दैट मीन्स कि एक बैंक ने लेटर से किसी एक इंडिविजुअल को लोन दिया, स्टार्टिंग पे उसका प्रॉपर एनालिसिस हम नहीं कर पाए लेकिन उसका सिविल स्कोर था वो काफ़ी लो था। ऐसे केस में लो तो उसने बैंक ने तो लोन का पेमेंट तो कर दिया, लेकिन बाद में जब वो पेमेंट नहीं रिपे कर पाया तो ऐसे केस में जो दिक्कत हो जाएगी बैंक को या जो रिस्क बैंक इज गोइंग टू फेस, दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्रेडिट रिस्क। This credit risk can be further divided into two heads. The first is sovereign and the other is settlement risk. Sovereign risk arises due to difficult foreign exchange policies, whereas settlement risk arises when one of the parties fail to fulfill their obligations. Obviously, sovereign का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज के बारे में रिस्क इम्पैक्ट आता है या वह रिस्क हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगा तो उसको हम लोग सॉवरेन रिस्क कहा जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि मुझे इंडिया और चाइना के साथ में ट्रेड करना है, बट आज के टाइम पे क्योंकि इंडिया और चाइना के जो फॉरेन रिलेशंस है वो बहुत अच्छे नहीं चल पा रहे हैं, ऐसे केस में देयर इज अ चांसेस ऑफ सम फॉरेन रिस्क, सॉवरेन रिस्क जिसे हम कहा जाएगा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेटलमेंट रिस्क। दैट मीन्स कि हाँ कुछ ना कुछ रिस्क फैक्ट रहता है सेटलमेंट के टाइम पे। आप इसको इस तरीके से समझ लो कि नॉर्मली क्या होता है, कोई पर्सन अगर काफ़ी लंबे समय तक आपका पैसा लेकर के बैठा है, वो कल को आपसे कह दे कि आप हमको थोड़ा बहुत कम भी पैसा दे दो लेकिन मैं आपको आज के आज अभी पैसा दे रहा हूँ, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली यू विल सजेस्ट दैट कि हाँ जो पर्सन मुझे इतने साल से 10,000 रुपये नहीं दे रहा था, आज अगर मुझे आकर के 9,000 रुपये दे देता है तो वी आर गोइंग टू सेटल अकाउंट। लेकिन वो जल्दी पेमेंट पाने के चक्कर में जो आपने अकाउंट में 1,000 का लॉस बियर किया, उस चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सेटलमेंट रिस्क कहा जाता है। द नेक्स्ट रिस्क इज द लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क अराइजेज ड्यू टू इनकेपेबिलिटी ऑफ द पार्टीज टू एग्जीक्यूट अ ट्रांजैक्शन। कभी भी अपनी कोई ट्रांजैक्शन को हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं सफिशिएंट बैलेंस ना होने की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रिस्क बोला जाता है। एसेट लिक्विडिटी रिस्क एंड फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, ये आपके दो फर्दर पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। Asset liquidity risk is due to insufficient buyers or sellers against the counter order. That means कि मैंने कहीं से कुछ भी रॉ मटेरियल वगैरह हमने परचेज कर लिया है, उसके अगेंस्ट में मैं उसको आगे सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, आगे वाली पार्टी को नहीं दे पा रहा हूँ, तो दैट विल द पार्ट ऑफ एसेट लिक्विडिटी रिस्क हो जाता है। While the funding liquidity risk arises due to lack of funds, that means कि अगर मेरे पास sufficient funds नहीं हो पाते हैं तो जो रिस्क हमें बियर करना पड़ेगा, that will be called as a funding liquidity risk. Moving to the next risk factor, that is the operational risk. As the name suggests, this is because of mismanagement or the technical failures that are present in the organization. That means कि एक मैनेजमेंट में अगर किसी भी चीज़ ने बहुत अच्छे से ऑपरेट नहीं किया होगा, उसकी फंक्शनिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, then the company has to bear the operational risk. Operational risk has been further divided into two risks. The first is the model risk and the other is the fraud risk. While fraud risk arises due to lack of control and model risk can be arise due to incorrect model application. अब दो पॉइंट समझिएगा। फ्रॉड रिस्क का मतलब क्या हुआ कि हाँ आपके यहाँ पे जो प्रॉपर कंट्रोल नहीं है आपके फैक्टर्स पे, आपके चीज़ों पे, आपके एम्प्लॉयज़ पे, तो जो आप रिस्क बियर करोगे उसे हम फ्रॉड रिस्क कहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की ट्रस्ट वर्दी नहीं होने की वजह से जो रिस्क आपको बियर करना पड़ता है उसे हम फ्रॉड रिस्क कहते हैं। जो दूसरा मॉडल रिस्क होता है दैट इज कॉल्ड एज इनकरेक्ट मॉडल एप्लीकेशन। दैट मीन्स अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं किया या उसे प्रॉपर फॉलोअप नहीं कर रखा, तो जो रिस्क फैक्टर आपको बियर करना पड़ेगा तो वो हमारा बन जाता है मॉडल रिस्क बन जाता है। The last is the legal risk. This arises due to lawsuits and other legal proceedings. Many see legal risk as a part of operational risk. अगर हम बात करते हैं लीगल रिस्क का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलोअप करना पड़ता है, लीगल प्रोसीडिंग को फुलफिल करना पड़ता है, उसका जो रिस्क फैक्टर होता है उसको हम लोग लीगल रिस्क बोलते हैं। अगर देखा जाए कोई भी एक बिजनेस होगा आज के टाइम पे, इट कैन नॉट वर्क विदाउट एनी लीगल ऑपरेशंस। उसको अपना एग्जिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, अपने आईडीआर फाइल करने पड़ेंगे, ऑल दीज आर द रेगुलर पार्ट्स। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लीगल रिस्क को ऑपरेशनल रिस्क की कैटेगरी में भी रिकॉर्ड कर देते हैं।
The last is the political risk. Such risk result from unstable political conditions or any legislation that may affect a company or a sector. Obviously अगर political background वहाँ पे stable नहीं है जहाँ पे आपकी company situated है या जहाँ पे आपकी company की जो values है वो थोड़ा सा impact कर रही है, तो ऐसे केस में जो आप पे risk पड़ेगा that will be political risk. That's all the total types of risk. I have given a gist for each and everything. दिस इज द ओवरऑल टॉपिक जिसमें फाइनेंशियल रिस्क के डिफाइन किया गया है, उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं, एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो. अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वी विल वर्क फर्दर ऑन दैट पार्ट. सो लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हियर ओनली. थैंक यू फ्रेंड्स.